नमस्कार दोस्तों। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रिय है हम सबके लिए। इनफैक्ट एवरी हाउस नोज अ वेरी वेल। आज मेरे शो में जो मेरे सामने बैठी हुई है उनका नाम है जूही परमार। What was that time where you decided that you want to act and you want to become an actress? 10-12 साल की उम्र की थी तब से कोई भी सीन देखती थी तो जो मुझे अच्छा लगता था या ऐसा लगता था कि ये परफॉर्म करने में कैसा लगेगा वो मैं खुद परफॉर्म करके कोशिश करती थी। अगर मैं ये सीन करूंगी तो कैसे करूंगी। Kumkum played a very important role in your life. Turn in my life, I think, which I was waiting for career-wise. And there was no looking back after that. The amount of love I got apart from popularity, it was difficult to handle because I was very young. I didn't know how to handle so much popularity. Even with Hussain, I don't remember even a single scene where I felt that we've not tried to work as a team. बहुत ही नेचुरल ग्रोथ है तुम्हारी। Practically on set रोज सीखा है हमने। वो इसीलिए मैंने कहा वो हमारे लिए इंस्टीट्यूट ही था। जूही फ्रॉम कुमकुम, ये मेरी फैमिली इन जो शोज से यू अपीयर इन बिग बॉस। हाउ डिड यू मैनेज दैट? मे बी उसका रीजन भी ये था कि उनको उसमें आउटस्पोकन लोग ही चाहिए होते हैं। सेकेंडली, आई लाइक पुटिंग माई सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। शायद वही मेरी परीक्षा थी कि उस माहौल में रहकर भी आप अपनी क्लास ना छोड़ें। जूही, यू हैव अ क्यूट डॉटर। हाउ डू यू लुक एट her future? See, for me, success is when you're truly happy, and that can come with whatever career she chooses. So when it comes to career, yes, I'm going to give her complete freedom. What is the role you want to perform? एक कैरेक्टर है जो मैं शुरू से बोलती आई हूँ, जो मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है। Something on the lines of what Sridevi ji did in Sadma. You have a separate, different journey of spiritualism. I was looking for answers from childhood and questions kept on getting piled up. फिर मेरी लाइफ में जो experiences हुए उससे मेरे questions और बढ़ गए, and then came Bhagavad Gita in my life, and that changed everything. डाउट वाली तलवार निकाल के फेंक दिए। मेरे म्यान में एक ही तलवार है, विश्वास, और सिर्फ विश्वास and detachment with the outcome. And I'm only working on becoming a better person because that's the only legacy you can leave behind. What is this startup of yours is all about? It's a natural skincare brand called Love Thy Nature. I am the co-founder. Since I believe that natural beauty is real beauty, जो आपको दिया गया है आप उससे satisfied ही नहीं है, क्योंकि एक unnecessary beauty standard बना दिया गया है जिसके दायरे में अगर आप नहीं आते तो आप beautiful considered नहीं हो सकते। Aging is beautiful. I am an actor, I am a mother, I am this. Probably next time when we sit and talk, you will say, जूही ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, तुमने ये भी करा है। Correct. तुम ये कब से सोच रही थी करने की? Correct. Because I don't want to stop my growth. I want to keep learning. क्या एक hidden talent है singing का। That's why I want you to end the show on a musical note. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। नमस्कार दोस्तों, thank you for watching my podcast constantly and giving brilliant responses to our show. आज मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रिय है हम सबके लिए। इनफैक्ट एवरी हाउस, एवरी होम knows her very well, and she's a brilliant actress, a great human being, and a person who has a voice on a lot of social issues. In fact, that is one of the major reasons why she's on my show today. एक्ट्रेस तो कमाल की है ही है, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा जिंदा इंसान जो है वो हमारे इस शो की एक 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 टैगलाइन है। आज मेरे इस शो में जो मेरे सामने बैठी हुई उनका नाम है जूही परमार, who has brilliantly performed in all her shows, and she's created a great name for herself. Thank you, Joohi, for being a part of this show. It's really a pleasure being with you. In fact, it's a
kind of a fan moment. Thank you so much. It is humbling to hear these words coming from you. मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एज आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, यू नो दैट। तो आप जब बोल रहे थे तो मैं एक अच्छे बच्चे की तरह चुप करके पहले सुन रही थी। भले ही आप उसमें मेरे लिए अच्छा भी बोल रहे थे तो मैं बीच में थैंक यू बोलना चाहती थी, बट थैंक यू सो मच। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर विद यू, सिटिंग अक्रॉस एंड टॉकिंग टू यू एंड बीइंग ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू जूही। जूही, एक बात बताओ मुझे कि बचपन में या व्हेन यू आर ग्रोइंग, what was that time and what was that time frame or that moment where you decided that you want to act and you want to become an actress? मैं ऐसा एक मोमेंट प्रिसाइज तो नहीं बता सकूंगी, पर इतना है कि जब मैं कोई फिल्म देखती थी 10-12 साल की उम्र की थी, तब से Yeah. कोई भी सीन देखती थी तो जो मुझे अच्छा लगता था या ऐसा लगता था कि ये परफॉर्म करने में कैसा लगेगा, वो मैं खुद परफॉर्म करके कोशिश करती थी Yeah. कहने की और करने की कि अगर मैं ये सीन करूँगी तो कैसे करूँगी। सो उस समय पे श्रीदेवी जी, माधुरी जी, इनकी फिल्म्स देखना और उनसे इंस्पायर होना ये बहुत हुआ है मेरे साथ। और उनके सीन्स जैसे मैंने चालबाज देखी, हम आपके हैं कौन देखी, इन फिल्म्स के सीन्स, साजन, इन फिल्म्स के सीन्स को खुद अकेले मैं एनैक्ट करती थी और वो डायलॉग्स बोल के देखती थी। और इससे मुझे ये समझ में आ गया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज दिस गिव्स मी ट्रिमेंडस जॉय व्हेन आई एम डूइंग इट, एंड आई फील कि इंसान को काम वही करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगे। Yeah. तो आई रिमेंबर आई वाज जस्ट अबाउट 10 years old or 12 years old when I told my parents कि मुझे बड़े होके यही करना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। और पढ़ाई लिखाई में मैं काफ़ी अच्छी थी, मैं क्लास के फर्स्ट रैंकर्स में से थी। तो ऐसा नहीं था कि क्योंकि मैं कुछ और करने का नहीं सोच पा रही थी इसलिए सोचा चलो ये कर लेते हैं, Yeah. बट बिकॉज दिस इज़ वेयर माई हार्ट वॉज एंड माई पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव। दे अंडरस्टूड दैट दिस इज़ वॉट शी ट्रूली वॉन्ट्स टू डू। That's very rare. या इट्स वेरी वेरी रेयर, बट मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल रहे हैं शुरू से, और उन्होंने हमेशा मुझे जो मैं करना चाहती हूँ वो करने दिया। तो बस आई टोल्ड देम एंड दे सेड ठीक है अपनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद You basically from which place? कहाँ से? आई वाज बोर्न इन उज्जैन, Okay. ब्रॉट अप इन जयपुर, राजस्थान। Okay. So you landed in Mumbai after your education. जी, मैंने 12th किया, उसके बाद मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही थी क्योंकि Okay. मुझे ये मालूम था कि एक्ट्रेस बनना है। अब और 3 साल ग्रेजुएशन के यहाँ रहने, मतलब 3 साल और निकल गए यंग एज के, तो जल्द से जल्द बॉम्बे आओ। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई करती रहूँगी, बट बॉम्बे जाके कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं एग्ज़ाम देने वापस आ जाया करूँगी। सो आई वाज अबाउट ऑलमोस्ट 18 व्हेन आई केम टू मुंबई एंड बस फिर जैसे सभी लोग कोशिश करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, क्या लोगों से हुआ मिलते हैं। मुंबई जब लैंड किया तुमने, उसके बाद की स्टोरी सुनाओ। वी ऑल वांट टू नो योर जर्नी फ्रॉम द टाइम व्हेन यू लैंडेड इन दिस सिटी, शहर में आई और आपने अपने आप को एक ऐसे इंडस्ट्री में पाया जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है जी, to make a name or to make a career and to get into right places and right people. That journey, please go at length and share your experiences also. मैं अपने पापा के साथ आई थी बॉम्बे और वो मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। मेरे चाचा चाची, कज़न चाचा चाची बॉम्बे में ही रहते थे। उनके साथ मैं रही पहले 1 साल, तो बिकॉज़ मुझे कुछ भी नहीं पता था बॉम्बे का। तो तब बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। Correct, तो correct. बॉम्बे का, और तब यहाँ आकर मैं उनके साथ रही क्योंकि मेरी चाची इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हैं। शी इज़ एन एक्ट्रेस ऑल्सो, शी इज़ डबिंग आर्टिस्ट। तो उनको काफ़ी जानकारी थी कैसे ऑडिशन देते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं एंड ऑल। तो शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू कपल ऑफ पीपल जो लोग कास्टिंग वगैरह करते हैं, एंड दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड। जहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर होता था या रोल होता था जहाँ लगता था कि मेरे लिए ठीक है, तो मुझे उन ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था। धीरे धीरे आई गेव ऑडिशंस वन आफ्टर द अदर। पहले छोटे छोटे रोल्स किए, फिर धीरे धीरे करके इन कपल ऑफ इयर्स आई लैंडेड at playing main characters, and then there was no looking back. Kumkum played a very important role in your life. Yes. What was the experience? How had it happen? And जब ये शो शूट भी हो रहा था, you must have had a lot of experiences with your directors, with your co-actors, character developing, popularity. एक पूरा नया स्टेज, you became a household name. इस पूरी जर्नी को, इस पूरे स्टारडम को
इस पूरे एक्सेप्टेंस को लोगों के बीच में, खास करके टेलीविजन का जो स्टारडम होता है, बहुत बड़ा स्टारडम होता है, बिकॉज यू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। हर आदमी आपके साथ आइडेंटिफाई करता है, आपके कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करता है कि हर घर में कुमकुम है। राइट फ्रॉम मेकिंग, राइट फ्रॉम शूटिंग एक्सपीरियंस, जूही, till becoming a known face. Just narrate that journey of yours. सो कुमकुम मेरा सेकंड टाइटल रोल है। कुमकुम से पहले मैंने शाहीन किया था, Yeah, जिसमें आई प्लेड Yeah, शाहीन। yeah, तब तक सेमी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं मिली थी कि Yeah. कहीं कहीं जाती थी तो लोग It's a very good पहचानते show, थे। very एंड good या show. वेरी वेरी गुड शो, एंड टू गेट समथिंग दैट सब्सटेंशियल टू प्ले इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माई किसने करियर। डायरेक्ट किया था शो? उसे तब दो डायरेक्टर्स थे, हाँ। बाद में पहले प्रवेश भारद्वाज जी थे Correct, और फिर बाद में गुल खान आ हाँ, गई थी, गुल जो खान, अब correct, काफ़ी yeah, बहुत अच्छे शोज बना correct, रही हैं, correct, उन्होंने किया correct. था। तो तब जब वो शो मुझे मिला था, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे मेरा हर शो ऑडिशन करके मिला है, तो मुझे मालूम अच्छा। था कि मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी पे ही मिल रहा है। Okay. जस्ट बिकॉज किसी ने रेकमेंड कर दिया या किसी ने बात कह दी कि ये कर लेंगी ये रोल, इसलिए नहीं मिला है। और शाहीन जब मुझे मिला, और उस समय पे मुझे ये बोला गया था कि इट्स वेरी गुड दैट आपको इतनी छोटी उम्र में मेन लीड और टाइटल कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है, बट दिस इज इट, बिकॉज इतनी जल्दी आपने टाइटल रोल कर लिया है कि अब इसके बाद क्या ही करोगे आप अपने करियर में। बट देन कुमकुम हैपेंड, एंड कुमकुम के लिए और शाहीन और कुमकुम के बीच ना टेलीविजन का ट्रांजिशन हो रहा था। Okay. जब तक मैं शाहीन कर रही थी तब तक डेली सोप्स इतने बनते नहीं थे, तब तक वीकलीज का ही जमाना था। और डेली तब एक महल सपनों का करके एक शो आता था, Yeah, दैट वाज द डेली शो। एंड तब फिर केबीसी आया और क्योंकि कहानी, दीज डेली सोप्स केम, एंड ओवरनाइट टेलीविजन बिकेम अ डेली सोप वाला Industry. चैनल। या सो कुमकुम के लिए जब मुझे कॉल आया और ऑडिशन लिया, तब मुझे पता चला कि कुछ 150 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था कुमकुम के अच्छा, लिए। okay. एंड देन मुझे सेकंड ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तब मुझे बोला गया था कि आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। उन 150 में से 2 लड़कियां शॉर्ट लिस्ट हुई थी, एक मैं और एक एक्ट्रेस थी जो आज काफ़ी पॉपुलर हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी Correct. क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुई। तो हम 2 लोगों ने सेकंड ऑडिशन दिया, एंड उसके बाद मुझे कुमकुम मिला। और तब तक कुमकुम का नाम कुमकुम नहीं था, तब तक शो का नाम था मर्यादा, कैरेक्टर का नाम था प्रियंका। Okay. लेकिन जब तक सेकंड ऑडिशन करके फाइनल हुई, तब तक शो का नाम भी कुमकुम हो गया था और मेरे कैरेक्टर का नाम भी कुमकुम था। एंड देन केम द टर्न इन माय लाइफ, आई थिंक, which I was waiting for career wise. And there was no looking back after that. The amount of love I got apart from popularity, the adulation that I got, not just from industry, everybody around, matlab going on the road and everyone coming and giving you so much love. It was difficult to handle because I was very young. I didn't know how to handle so much Correct. popularity. But yeah, it did humble me a lot, because I realized that इतना प्यार अगर मिल रहा है तो उसकी कदर करना चाहिए, उस ना कि ये सोचना चाहिए कि आई एम समथिंग that I am getting it. It is God's blessing that I'm getting it. There was a little phase initially where you do, because I was very young, I did feel that okay, I have arrived. But in about a year and a half's time, I started feeling more humble about it. And I was fortunate to even work with people who were very humble. I was not working with people जो ठीक है सेट पे आ रहे हैं, काम करके घर चले जा रहे हैं. We were all very connected. We loved each other so much like a family. People like अरुण बाली जी, रीटा बहादुरी जी, हुसैन और मेरा तो इक्वेशन ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही बहुत ही कमाल था. हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे ड्यूरिंग दैट पीरियड. लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं था. कुमकुम आई थिंक इज वन ऑफ द ओनली शोज, प्रॉबेबली द ओनली शो, जिसमें शुरू से आखिर तक यूनिट सेम रही. उस दौरान जब डेली सोप्स होते थे तो हर दूसरे दिन डायरेक्टर्स चेंज होते थे, यूनिट चेंज होती थी, कैमरामैन चेंज होते थे, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से हमारे लाइटमैन से लेकर हमारे स्पॉट दादा भी सेम थे फॉर 7 years. It was like a big family. 7 years is a long time. Yes, for 7 years. And we all loved the show so much that मुझे मेरे लाइटमैन का नाम अभी भी याद है, माजिद. मेरे कैमरा अटेंडेंट का नाम याद है, जोशी. मेरे स्पॉट दादा जो मेरे फेवरेट थे वो हैं पवन दादा. तो नो हमारे इतनी क्लोज निट यूनिट थी कि सालों साल सब साथ में थे. कि रिसेंटली व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर ये मेरी फैमिली, मेरे सामने जो
चाय लेकर आए, उनको जैसे ही मैंने देखा उन्होंने मुझे हेलो मैडम बोला, मैंने कहा पवन दादा। मैं उनका फोटो उनको देखते ही मेरे को पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया था, एंड आई गॉट सो इमोशनल लुकिंग एट हिम एंड आई फेल्ट सो गुड। आई इमीडिएटली क्लिक्ड अ पिक्चर विद हिम एंड आई सेंट इट टू हुसैन दैट रिमेंबर हु इज ही, लाइक मेरी मेमोरी बहुत खराब है, तुम ही बताओ। अच्छा, So yeah, we had a great time. It was a wonderful learning institute also for me. I think I evolved as an actor every day over there, because मैंने इतने तरीके के कैरेक्टर्स प्ले कर लिए एक चलते शो में, क्योंकि उसमें इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए, इतनी सिचुएशंस देख ली एज एन एक्टर, तो मुझे समझ में आया कि ओके ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसा हो तो ये करना है. सो it was actually like a institute for all of us, where we all evolved as actors. People like Bali ji and Rita Bhaduri ji to were They're already masters, legends, yeah, तो yeah, उनकी yeah, तो correct, बात ही अलग है, they were veterans. But correct. for people like Hussain and me who were starting, over the years we all held each other's hand and became better actors. Who are the best friends of yours in the industry? इंडस्ट्री में ना बहुत गिने चुने लोग होते हैं इसलिए जिनको मैं पूछ आप रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं. पर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप जिनका नाम नहीं लेते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमको तो ये लगता था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हमारा नाम वर्क क्यों वाइज नहीं यू नो, लिया. देखिए फ्रेंड्स तो मतलब सब होते हैं. विद जैसे जैसे तुमने कहा कि वी हैड अ गुड कमरेडशिप, वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, और काफ़ी कुछ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होती थी. जी तो तुम्हारे को एक्टर्स जितने भी थे तुम्हारे आसपास, जैसे आपने बालाजी के बारे में कहा या रीटा जी के बारे में कहा, ग्रोथ में या एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, who are the people who really have played very important, बहुत important रोल उन्होंने प्ले किया है? बिकॉज जैसा तुमने कहा कि तुम बहुत यंग एज में आ गई थी, जी तो तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है करेक्ट पगडंडी पे चलें जी या करेक्ट रास्ते पे चल के आप अपना करियर बनाएं. बिकॉज इट्स लाइक या एक भी अगर फिसलन हुई तो बंदा इधर का उधर हो जाता है. जी So fortunately for you, definitely people around you must have played that role of carving you into a correct person and a correct talented actress, you know. क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने कोई इंस्टीट्यूट से आए हो, वहाँ पे जी आके एनएसडी से आए हो, कुछ जी आए हो. बहुत ही नेचुरल ग्रोथ है तुम्हारी, यू नो. जी. बहुत ही नेचुरल अपब्रिंगिंग है एज फार एज एक्चुअली दिस. प्रैक्टिकली ऑन सेट रोज सीखा है हमने, वो इसीलिए मैंने कहा वो हमारे लिए इंस्टीट्यूट ही था. हम रोज ही सीख रहे थे, और अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो उसे कैसे बेहतर करना है ये हमें वहीं सेट पे बताया जाता था. एंड रोज कर करके हम और मंचते चले गए कलाकार के रूप में. एंड एज एक्टर्स आई थिंक कुमकुम के दौरान सबसे ज़्यादा आपस में एक दूसरे को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एज आई सेड थे हम रोज साथ में ही काम करते थे. एंड इन दैट यूनिट देयर वाज नो वन अप मैनशिप. देयर वाज नो ट्राइंग कि मेरा सीन बेहतर हो, मैं अच्छा करूं, ये इनका इतना अच्छा ना हो. हम लोग एक दूसरे को क्यूज भी खुद देते थे. हम ऐसे नहीं बोलते थे कि असिस्टेंट आके क्यू दे देगा, क्योंकि हमें लगता था कि जब आपका को एक्टर क्यू देता है तो सामने वाले का परफॉर्मेंस और निखर के आता है. तो किसी एक के लिए बोलना अनफेयर होगा, क्योंकि पूरी यूनिट ही एवरीबडी वाज देयर टू सपोर्ट ईच अदर, एंड वी वांटेड द शो टू शाइन. एंड वी नेवर हैड दिस वन अप मैनशिप कि मैं अच्छा करूं, हम सब अच्छा करें. आई थिंक वही वाइब्रेशन जो थी उसने उस शो को इतना पॉपुलर बनाया, बिकॉज वी नेवर हैड दिस फीलिंग ऑफ मैं ओवर देयर. इट वाज हम, एंड दैट ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन. Even with Hussain, I mean, I don't remember even a single scene where I felt that we've not tried to work as a team. We've always worked as a team, and that helped me learn one thing, that एक अच्छा एक्टर जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने साथ वाले को एक्टर को भी और उसके परफॉर्मेंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी खुद को देता है. क्योंकि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, अगर आपका को एक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है, आपका सीन गिर जाएगा, तो फिर आपका जो भी वो शो है या फिल्म है या जो भी प्रोजेक्ट है वो निखर के नहीं आएगा. इसलिए ये टीम वर्क है, इसमें साथ मिलके काम करना चाहिए. ये मुझे करते करते में हम सबको समझ में आया, एंड वी वर देयर फॉर ईच अदर. एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक आई एम समबडी जो इनवर्ड ज़्यादा देखती है बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स के. मेरी जर्नी पर्सनल जो रही ज़िंदगी में, उससे मैंने जो जो सीखा, दैट केप्ट ऑन शेपिंग मी एज अ ह्यूमन बीइंग. और आई एम ओनली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, गुड बैड बोथ, सो दैट आई कुड बी द पर्सन दैट आई एम टुडे. I was always a righteous person. I am very principled.
ऑनेस्टी सर से पैर तक कूट कूट के भरी है बचपन से, एंड ऑल दैट गोज टू माई पेरेंट्स बिकॉज यही संस्कार मुझे मिले. लेकिन still the scope of becoming better is always there, and understanding situations, people, life, that happens with experience. And with experiences, whatever I have understood of life and the way I have worked on myself and shaped myself, I am only thankful to God for sending those opportunities in my life so that I can become the person I am today. See, you have been very outspoken. आप सोशल इश्यूज पे काफ़ी रिएक्ट करती हैं, बात करती हैं. व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज बहुत कम देखने को मिलता है कि जहाँ पर एक कलाकार, एक्टर जो है, वो माइट बी अ गुड एक्टर, गुड एक्ट्रेस, लेकिन उनका नॉलेज या उनका एजुकेशन ऑन social issues, there's nothing wrong in it, that you are not aware of things, you don't want to be a part of it, it's an individual decision. But you have been very vocal on issues, you have been very socially relevant person. How does it help you as a performer to be responding to things apart from your career or your profession? सो मैं उसे एज अ परफॉर्मर नहीं देखती हूँ, वो मैं हूँ एज अ पर्सन, और वो मेरे अंदर बचपन से है. मुझे लोग झांसी की रानी बुलाते हैं बचपन से, कोई रीजन से ही बुलाते हैं. मतलब स्कूल में भी अगर किसी गलत बच्चे को डांट पड़ रही होती थी और मुझे पता होता तो उसने किया, तो मैं बोलती थी मिस उसने नहीं किया था, उसने किया अच्छा, था. okay. तो मतलब मेरे अंदर वो राजपूत हूँ तो वो गर्म खून बचपन से था कि अनफेयर होते हुए नहीं देख पाती हूँ. एंड आई हैव टू वॉइस माई ओपिनियन देयर, एटलीस्ट जहाँ मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ कोई बदलाव ला सकती है. अगर बदलाव ना सही तो कम से कम अगर लोग गलत दिशा में है या गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो सही उसे कर सकती है, तो मुझे ज़रूर बोलना चाहिए. बिकॉज हम लोग यहाँ सिर्फ अपना अपना सोच कर जिए और अपना अपना सोच कर ही चले जाएं, तो फिर क्या ही जिए आप. तो आई हैव बिन वोकल as a person right from my childhood. It did not change, or overnight that part came into being a part of my personality because I became an actor. I was that person right from the childhood. Juhi, from कुमकुम, ये मेरी फैमिली, इनसे शोज से यू अपीयर्ड इन बिग बॉस. ये दो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिफरेंट जॉनर, कल्चरली टोटली डिफरेंट. हाउ कुड यू टेक द पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ, मतलब कहाँ कुमकुम दे के अच्छी खासी बंदी, सब कुछ सही, and suddenly you get into Big Boss kind of a place. How did you manage that? मतलब ये देखो बहुत बहुत लगता है बहुत आसान है, नहीं बहुत मुश्किल लेकिन है. बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम राइटियस हो, जैसा तुमने कहा, तुम इश्यूज पे बात करती हो, तुम्हारा टेम्परामेंट इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, सब कुछ. और एक माहौल में आप बिलीव करते हो, आप एक एटमॉस्फेयर में बिलीव करते हो, एक जॉनर में बिलीव करते हो. वो सब अलग रख के यू एंटर्ड बिग बॉस. पहली बात, तुमने एक्सेप्ट कैसे किया उसको, एंड सेकेंडली हाउ कुड यू सक्सेसफुली डू योर बिट इन दैट काइंड ऑफ अ शो. एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला मामला है पूरा कंप्लीट. सो मेरे लिए बिग बॉस मुझे सालों साल ऑफर होता रहा था, लेकिन तब मैं कुमकुम कर रही थी, तो 4 सीज़न हो चुके थे बिग बॉस के. फर्स्ट सीज़न नहीं ऑफर हुआ था, सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ था. मे बी उसका रीज़न भी ये था कि उनको उसमें आउटस्पोकन लोग ही चाहिए होते हैं, इसलिए उनको लगा कि ये हमारे लिए बहुत सही कैंडिडेट है, क्योंकि ये अपनी बात रखती है सामने. बट आई वॉज डूइंग कुमकुम, सो आई कुडंट एक्सेप्ट द ऑफर. एंड जब मैंने सीज़न 5 किया तब तक कुमकुम फिर ख़त्म हो गया था. तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर मी टू डू दिस वाज कि दैट आई हैव बीन ऑफर्ड द शो मल्टीपल टाइम्स. सेकेंडली, आई लाइक पुटिंग माई सेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, एंड आई फेल्ट दैट ओके, लेट मी ट्राई and let me test myself. How do I fare in a situation like this? And I surprised myself in how, because even after I came out, I remember meeting Hussein at some event where Big Boss was very new. So he just said that I don't believe this, the way you handled yourself there. He said मैं तो देख के सोचता था अब फटी ये जो सिचुएशन है इसमें तो जरूर फटेगी, बट यू हैड ग्रेट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. हाउ डिड यू डू दैट? आई सेड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट ये मैं सेम चीज मैं भी पूछ रहा हूँ exactly. वही. एंड आई डिस्कवर्ड दैट अबाउट माई सेल्फ इन दैट शो, that I am a patient person. When I need to, I can really show tremendous patience. And it was my wisdom, because I told myself that, Juhi, this is not your life. This is just a show. And this is for 3 months. All you need to do is speak up and
be with the right. So whenever I felt that जहाँ भी मेरा ओपिनियन देने की ज़रूरत है मैंने वहाँ अपना ओपिनियन दिया. मैं शुरू से आखिर तक उस शो में न्यूट्रल रही. जहाँ मुझे जो चीज़ गलत लगी वहाँ मैंने आवाज़ उठाई. बिग बॉस तक से लड़ाई की जब मुझे लगा कि कुछ गलत है. वहाँ मेरे को पार्टिसिपेंट्स हंसते थे मुझ पे कि हम लोग आपस में लड़ते हैं, ये हमसे नहीं लड़ती है, ये बिग बॉस से लड़ती है. क्योंकि मैं कैमरा में देख के बिग बॉस से बात करती थी. मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, आई नीड टू टॉक टू यू. तो लोग बोलते थे बिग बॉस को इकलौता जना है जो बोलता है मुझे आके आपसे बात करनी है. So I used to voice my opinion, but I did not have to stoop down to a level of fighting. I think I had only one fight in the show, which was also based on respect. In that fight, I was spoken to in a very bad tone, and I could not take it. And I said that this is not how you speak to a woman, because I am talking to you आप करके. तो आप कैसे तू पर उतर आए हैं? So I can't take disrespect. So that fight was also based on respect, and that fight also I did respectfully by calling him आप only. उसके अलावा I Was this scripted? no, not at all, not at all, not at all. So I had a wonderful time in the show where I was just being myself. I didn't try to portray myself being somebody else, because कितने दिन तक आप pretense चला सकते हैं. Yeah, तो correct. I think the one thing that worked in my favor was that I was not pretentious. जब मुझे कोई चीज़ गलत लगती थी तो मैं अपने दोस्तों को भी, जो वहाँ मैंने दोस्त बनाए थे, उनको भी अपनी बात बोलती थी कि मुझे ये ठीक नहीं लगा. मेरी उनसे भी डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, और जो लोग मुझे नापसंद थे उनसे तो डिसएग्रीमेंट्स हुई ही हैं. बट नेवर आई लॉस्ट द और क्रॉस द लाइन ऑफ रिस्पेक्ट. सो दोज थिंग्स आई मेंटेन्ड. और शायद वही मेरी परीक्षा थी कि उस माहौल में रहकर भी अब आप अपनी क्लास ना छोड़ें, आप अपनी डिग्निटी ना छोड़ें, और ऑनेस्टी बनाए रखें. और ये 3 चीज़ें ही मेरे फेवर में काम की, एंड पीपल सॉ द रियल मी एंड दे चोज मी एज द विनर. What is the role you want to perform? ओह, क्या क्या as an actor, तुमको लगता है कि यार ये रोल मुझे मिल जाए तो कमाल हो जाएगा, ये कैरेक्टर अगर मिल जाए तो कमाल हो जाएगा, and I'll really feel that my entire dream has come true and all that. Every actor has this. एक कैरेक्टर है जो मैं शुरू से बोलती आई हूँ, जो मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है. समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट श्रीदेवी जी डिड इन सदमा. Okay. So that kind of a character, and a newly developed liking is towards something where she's like a cold-blooded murderer, where I can play and be someone that I can never be in real life. I can never be vicious and go harm somebody, but someone cold-blooded. How would that be? Sangya, to some extent, what I played in Shani, the Yeah, negative Shani, character, yeah, was really cold-blooded. Yeah. But it was a completely different zone because it was mythology. In today's times, like in OTT, where the performance and everything is going to be so subtle, but you just look into the eye and the other person will not know that she's going to kill you in the next moment. That kind of a character, and one like Sadma. These 2 characters I would really love to play. हम विश करते हैं कि हो जाए. Yes, your dream comes true. And तीसरा cop. अच्छा, Cop, yes. You dream I of would playing. love to play a cop who fights for the country, who will go and do whatever it takes to just do it for the country. These 3 kind of characters. Juhi, you have a cute daughter. और उसको देख के मज़ा आता है जब when I see your reels and all, and she has an element of good बदमाश वाली performer. How do you look at her future and what do you think she should, हालांकि बच्चे जो खुद ही डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, a role model for her, you really feel that ये बच्चे को ऐसा होना चाहिए, and being a single mother, you really want this child to be a fantastic person. How do you, I'm asking this question to you because मैं जब भी तुम्हारी रील देखता हूँ, I've never met her, she has a very unique charm and unique aura around her. When I see her with your mother also, जब देखता हूँ मैं हर रील देखता हूँ आपकी मैं, it's a very homely, very positive reels you make, and a lot of learning and a lot of messages also. How are you thinking her to be as you being a role model to her? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ because I want people, the viewers, to know how an actress, a performer, deals with the kids and how
they become a reason for the success of the child. See, for me, success is when you're truly happy. And that can come with whatever career she chooses. So when it comes to career, yes, I'm going to give her complete freedom. I got the complete freedom when Yeah. I wanted to be an Yeah. actor, and I know that if my parents had not supported at that time, Yeah. I would have been so heartbroken, and all my life I would have thought, I wish. Yeah. I would never want my daughter to feel I wish. Correct. So I have told her, do whatever you want to do in your life, choose whichever career, but choose that career that gives you complete happiness. Because when you're happy, success comes automatically as you give your 100% to Yeah. it. So career wise, she keeps changing her thoughts about it, and whatever she says that now I think I want to be this, and I say okay. Then she says no, but I want to be this now. Okay, you will let me be this. I said no, I am not someone who's going to say I let you do this. It's your life, you're going to choose. I'm going to be with you, supporting you in whatever you're doing. Like, I'll always be her biggest cheerleader. Yeah. Yeah. But as a person, yes, I am working, and I have put my heart and soul into it, and she is going to make me proud at every step. I know that she makes me proud already with the kind of person that she is. It's very important to be an honest person. It's very important to have compassion in your heart, to have kindness towards people, to want to do things for others, and she has that quality in her. She is a good person, a good soul, who would want to bring positive change in the world and contribute to the positivity of the world. And that's the person that I have nurtured, and that's the person that she is, and she's going to grow up to only make me more proud than what she's making me today. Because I think as a parent, it's most important that आपने अपने संस्कार देकर इंसान को, जिस बच्चे को बड़ा किया है, अब वो सोसाइटी का हिस्सा होगा, वो आने वाले कल का सोसाइटी का हिस्सा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर टीचिंग द चाइल्ड. करियर तो सब अपनी चॉइस से कुछ भी बना ही लेते हैं, और आजकल के बच्चे जैसा आपने कहा खुद ही चूज करते हैं. बट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड is very important, and that is what I teach her at every step. In the smallest of thing, कुछ भी चल रहा होता है उसमें मैं बात उठा के बोलती हूँ, see now this what you did, no, this comes into this, and she says yeah I know mama, this means this, and this you have taught me so many times that now I remember this. I'm like, okay, I was just reinstilling it. So that is my motto, that I want to be proud of the person she is. टीवी शोज जो है ना बहुत रिग्रेसिव रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टीवी शोज. योर टेक ऑन दिस टीवी शोज एज एन इंडिपेंडेंट वुमन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? See, मेरे लिए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो रिग्रेसिव ना हो. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू डू ऑल प्रोग्रेसिव शोज. कुमकुम वाज सो प्रोग्रेसिव. आज से 20 साल पहले एक विडो रीमैरिज के ऊपर बना शो था, तो वो अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव था. कि व्हाट वी ट्राई टू शो वाज कि 22-year-old लड़की के साथ अगर ये हुआ है तो शी डजंट हैव टू स्पेंड ऑल हर लाइफ जस्ट लिविंग लाइफ ऑफ सैडनेस. सो उसके इन लॉज भी सपोर्ट करते हैं उसको उस शो में, एंड कैसे वो होता है, तो वो प्रोग्रेसिव था. रिसेंटली द शो दैट आई डिड ऑन ZTV, विच इज़ हमारी वाली गुड न्यूज़, इज ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव शो, बिकॉज उसमें she becomes she gives birth to a child for her son and daughter-in-law, because उनको बच्चा नहीं हो सकता है, तो she says I will fulfill that for you. And she supports her daughter-in-law. So in my case, I have always tried to look for shows and characters before saying yes. Two things that I see is, one, what is my character, what message it is giving, and what is the show's message towards the society. If that is progressive, is when I say yes. Then obviously we live in a world where all kind of people are there, all kind of shows are there, all kind of content is there, which we don't have a control over. हमारा जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ पे कंट्रोल है, वो है खुद पे और खुद की चॉइसेस पे. अगर हम सब सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो सोसाइटी अपने आप वो शेप ले लेगी जो हम सब चाहते हैं. सो आई एम वर्किंग ऑन डूइंग द राइट थिंग्स माई सेल्फ, एंड everybody else, whatever they feel is right, they do that, and we cannot have any control over that. So yeah, I choose good shows and progressive Who's shows. the best who's the director who has always inspired you in all your shows? Wherever everybody is a good director, I'm not comparing, but as an actress के नाते आपको लगता है कि मतलब मेरा आइडेंटिफिकेशन is the way he takes the shots, the way he conceives things, the way he makes
परफॉर्मर्स अलाइव प्रेजेंट करता है. योर एक्सपीरियंसेस विद बेस्ट पॉसिबल डायरेक्टर्स मेरे मेकर्स. तो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, जिसमें Yeah. एक आशीष पाटिल जी थे कुमकुम में. Yeah. उनके साथ आई हैड अ वंडरफुल टाइम. Yeah, you're a brilliant director. And for the longest time he was there in Kumkum. Yeah. Kumkum started with Sanjay Upadhyay ji. Yeah. So you know how great a Yeah. director he Yeah. is. I recently worked with Rahib in Ye Meri Family. He was so good. Mm. Raka sir was in Ye Meri Hamari Wali Good News. Yeah. He's such a sweetheart to work with. Mm. So I've worked with different kind of That's directors, why and they that's why all I'm have asking you. contributed in their own way. Sumit, who directed me in Shani, he also added his own flavor to my performance. So in each show, something or the other I have taken from my directors. But one director जिनके साथ मेरा काम करने का ड्रीम था जब मैं आई थी तब, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो है रवि राय जी. मैं उनको बिल्कुल, जब मैं न्यू कमर थी तब उनसे मिली थी और मैंने उनसे कहा था, रवि जी, आई वांट टू वर्क विद यू, एंड दैट हैज नेवर हैपेंड. You see, I'll take a thing ahead of this. Or please don't hesitate to answer this question. जी. आप जब अभी भी you are in full form. There was a time when Kumkum was made, and actors, whoever were around you, they all were identified by people with the name of the characters, and और वो characters कौन play कर रहा है, जैसे तुम्हारा identification कुमकुम का, स्मृति ईरानी, जितने भी एक्टर्स थे, आशका, ये जितने भी एक्टर्स उस दौरान थे, वो नाम से आइडेंटिफाई होते थे और चेहरे से आइडेंटिफाई होते थे. सेम थिंग वॉज विद डायरेक्टर्स. ये किसका शो है? रवि राय का शो है. ये किसका है? रमन कुमार का. ये किसका है? ये आनंद राय का शो है. ये किसका है? डायरेक्टर्स वेयर नोन एंड आइडेंटिफाइड विद द शोज. ये किसका है? ये अशोक पंडित जी का शो. ठीक है. मेरा अगला नाम, मैं आपका सवाल आ गया, मैं बोलती हूँ. दूसरा, आपके साथ भी मेरे को अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला है. नहीं तो उल्टा पड़ गया मेरे पे. ये आइडेंटिफिकेशन थी, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो, कि यार हम बैठते थे साथ में रवि के साथ, रमन के साथ, या आनंद के साथ, या जितने भी, संजीव भट्टाचार्य, संजय उपाध्याय, जिगरी दोस्त, हम सब वी आर ऑल फ्रेंड्स, यू नो. एंड एवरी शो हैड, हम शो देख के, हमको पता नहीं था डायरेक्टर कौन है, हम सीन देख के बोलते थे, या लोग बोलते थे रवि राय का शो है. Right. Kind of pauses, the kind of performances, the kind of script, and lot of other directors also. Yeah. I've been missing all this because हमारी जनरेशन के बाद या हमारे बाद जो डायरेक्टर्स आए, there are very few negligible लोग हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन है किसी शो के साथ. Right. एक तो मल्टीपल डायरेक्टर्स हो गए एक शो के. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं नेगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ, ये ज़रूरतें होंगी आजकल के टाइम की. सेम थिंग इज़ विद द एक्टर्स. सारे एक्टर्स जो हैं वो लगभग एक जैसे ही लगते हैं. वैसे हमारे मतलब इवन आप देख लो, चाहे रत्ना पाठक शाह हो, चाहे स्वरूप संपत हो, एक जॉनर था एक्टर्स का, एक जनरेशन था एक्टर्स का, जिससे लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते थे. डू यू थिंक दैट ऑल इज मिसिंग नाउ? See, with time, change is the constant. तो वो तो आना ही है, और हमेशा नॉस्टैल्जिया उसी चीज़ का होता है जो चीज़ गुजर के जा चुकी है, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट वी वांट टू रीलिव इट. सो ये वो चीज़ें हैं जो नॉस्टैल्जिक हैं आज, एंड ऑफ कोर्स वी मिस इट. अ शो लाइक अ सैलाब और a स्पर्श is definitely missed today, and people would love to watch that kind of depth, that kind of storytelling, shot taking, क्योंकि एक ठहराव था. तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली मिसिंग है, बट एज आई सेड कि क्योंकि चेंज इज द कांस्टेंट, वी हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स. मे बी दिस इज द नीड ऑफ द आवर. पॉलिटिकली राइट आंसर नहीं, मे बी दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज आज की जो ऑडियंस है उसका पेशेंस बहुत कम है. आज पहले 5 सेकंड में अगर आप की ऑडियंस एंगेज नहीं हुई और उसको पसंद नहीं आया, तो आपका पूरा 20 सेकंड का रील भी नहीं देखेगी. तो अगर आपको 5 सेकंड में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है इतना कि वो आपका 20 सेकंड का रील देख सके, तो वो ठहराव वाला शो जिसके पहले 15 सेकंड 20 सेकंड तक तो शायद हमने कोई डायलॉग ही नहीं बोला है, हम सिर्फ बैठे ही हैं, हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही दे रहे हैं, वो कितना देख पाने की पेशेंस आज की ऑडियंस में है, दैट वी डोंट नो. तो यस, people like us who have tasted it, people like us who have enjoyed it, definitely miss it. But will the people who really want to just see things on their fingertips want to see it
is a question that only they can answer. So someone like me, I love it. I would love to be a part of it. But someone like the viewers who are just watching things in few seconds, will they want to? Is something that we really need to ask them, Yeah. because they will be able to answer this question better. We are that generation जो ये भी देख रही है और जिसने ये भी देखा है. We've tasted best of both the worlds. But that generation has not even tasted that. So we don't know how are they going to react to it. But I feel that if the right kind of content is given with the kind of work that you are talking about, I'm sure they will like it. Otherwise, a nostalgic show like ये मेरी family wouldn't have performed so well. अगर nostalgia आज भी इतना work करता है, तो उस nostalgia में जो बाकी किस्म का content आता है जो हम आज भी miss करते हैं, वो definitely work करना चाहिए. ऐसा मेरी पर्सनल चॉइस कहती है. बट आम जनता की क्या चॉइस है वो तो वही बता सकती है. जूही, ये तो प्रोफेशन, बीइंग एन एक्ट्रेस, इंडस्ट्री, तो हमने बात कर ली. तुम्हारा एक और इलाका है जो तुम्हारा चेहरा बोलता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी बोलती है. यू हैव अ सेपरेट डिफरेंट जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, and I want you to spell out your experiences as far as spiritualism is concerned. What do you do? Who are the saints? Who are the people who have inspired you? And your experiences as human being, miracles in your life by getting deep into yourself with the help of your mindset as far as spiritualism is concerned. कुछ बताओ इस इलाके के बारे में. सी, मेरे लिए जैसे आपने कहा ना कि किसने आपको वो आपके अंदर वो चेंज लेके आया, या मैं गुरु कह लूँ, या मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कहूँ. लेकिन वो एक चीज़ जिसने सब कुछ बदल दिया, वो है भगवद गीता. आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी. मैं छोटी थी तब से ऐसे बहुत इंस्टेंसेस रहे हैं कि मुझे नाम नहीं पता था कि इसे आध्यात्म कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर इन चीज़ों को लेकर बहुत झुकाव रहा है. स्पिरिचुअलिटी ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है. द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वुड अट्रैक्ट मी, meditation used to attract me. I used to feel very good about it. I was looking for answers from childhood, and questions kept on getting piled up. फिर मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए उससे मेरे क्वेश्चंस और बढ़ गए कि मैंने तो कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. क्वेश्चन के साथ साथ नाराज़गी भी आ गई कि व्हाई डिड आई हैव टू गो थ्रू दिस, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस. ऐसे क्वेश्चंस बढ़ते चले गए, उसमें नाराज़गी भी मिक्स होती चली गई. एंड आई वाज लुकिंग फॉर आंसर्स बट आई वाज नॉट गेटिंग इट. एंड देन केम भगवद गीता इन माय लाइफ, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग. That changed my entire outlook towards every single thing that happened in my life, that's happening in the world, that's happening around people around me. सबसे पहले तो मेरे सवाल ही खत्म हो गए. मुझे सारे जवाब मिल गए और उसके साथ साथ मेरे सवाल भी खत्म हो गए. अब मुझे कोई सवाल नहीं है, मुझे किसी चीज़ से कोई नाराज़गी नहीं है. मुझे सिर्फ और सिर्फ थैंकफुल फीलिंग है. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड इंक्लूडिंग द लोज. क्योंकि अगर वो नहीं हुए होते तो मैं ये नहीं होती, मैं ये इंसान नहीं होती, क्योंकि फिर मैंने उन सवालों के जवाब ही नहीं ढूंढे होते. सो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज द बीइंग दैट यू आर, हाउ अवेयर यू आर एज अ पर्सन, हाउ माइंडफुल यू आर, and all the things that Bhagavad Gita teaches is actually manual for life. It just teaches you how to be and how to live. And after I read it, and after I had a lot of revelations while reading that book, not that I didn't used to read self-help books and motivating books earlier, but then there was no looking back. There was no stopping me. Books after books after books, I would just keep reading, from the power of subconscious mind to you just name it. Like मैं बोलना चाह रही हूँ कि 10 बुक्स है, मैं आपको क्या बोलूँ. मैं ये वाली पढ़ रही हूँ अभी, कि मैं ये वाली पढ़ रही हूँ, वेयर यू वांट टू बी टू वेयर, क्या हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू बी फ्रॉम वेयर यू आर, बाय जैक कैनफील्ड, टू
यू आर द प्लेसिबो, क्योंकि फिर वो ना सिर्फ बंद हो जाता है। अब बाहर उस तक नहीं रह गए मेरे सवाल या मेरा मेरा जानने का जो डेप्थ था वो कि फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट धार्मिक, इट इज अबाउट how you are as a person, how your mind works, how your thoughts work. So then I started reading a lot about mind, about thoughts, about your subconscious mind and all that. And the more I read, the more I loved knowing about all this. And it just kept making me a calmer person, a better person, more understanding, non-judgmental, more empathetic towards people. And on the whole, the way my journey is and the way I'm going and the way I'm loving to explore our mind and our thoughts, which is humans, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट. एंड आई टेल, जैसे आपने मुझसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि इंडस्ट्री में तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं आपसे कहूँगी अगर आपने इस सवाल में से सिर्फ इंडस्ट्री हटा के ये पूछा कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त कौन है, तो मैं 3 नाम लेना चाहूँगी. मेरी बेटी, मैं खुद और लॉर्ड कृष्णा. ये 3 मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. मेरे हर चीज़ के अंदर, मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण हैं. मतलब उनके बियॉन्ड कोई नहीं है जो आपको जिनसे आपको कुछ पूछने की ज़रूरत हो. आई हैव सो मच फेथ इन गॉड नाउ, आई हैव सो मच फेथ इन यूनिवर्स नाउ. I have taken 100% responsibility of my life. Of whatever has happened is my responsibility. Whatever will happen will be my responsibility. Because we keep playing so much of blame game that we forget that we are causing everything happening in our life, because that is the chain reaction, that is what we are attracting. So we don't attract what we want, we attract what we are. Is the concept I didn't know. I only knew that you affirm, you manifest, you ask for it and you get it. No, but if you're not that being, you will not attract it. आप विविध भारती लगा के 91.1 एफएम नहीं सुन सकते. क्या बात है, आपको 91.1 सुनने के लिए उसी की वेवलेंथ बैंडविड्थ में जाना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा. तो मैं अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अगर सही नहीं जा रही थी तो मैं कभी भी सवालों के जवाब ढूंढ ही नहीं सकती थी. मैंने मेरी फ्रीक्वेंसी सही सेट कर ली और वो फ्रीक्वेंसी सेट करवाई भगवत गीता ने. एंड आफ्टर दैट आई लव एवरी मोमेंट of every day that I get to see, because I am only learning. And I'm anything that does not go by my choice also, I only look at it as a third person. I say, okay, what is it trying to teach me? Let me take that lesson and move on. This change has come only because of Geeta. I was not this person earlier. Earlier, I used to get very angry if things wouldn't go according to me, if that was not what I wanted. But now I have completely detached myself from the outcome. कर्म कर फल की इच्छा मत कर वाला केस है. और उससे ही मतलब ऑफ डिटैचमेंट आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर रीडिंग गीता. सो आई ईट ब्रीथ स्लीप भगवद गीता. इट्स लाइक दैट नाउ. आई एम सो इन लव विद दैट बुक. You know, now that you're telling this, मैं तुमको मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, and you as a person has created a kind of an image, an aura in our minds, in everybody's mind. और मैं उसी ऑरा में या उसी उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमको मिलूंगा मैं या तुम निभाओगे, बिकॉज माइंडसेट रोज़ मिलता आदमी तो दिखता है. एंड आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर आई एम सेइंग, इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. तुमने जैसे एंटर किया ऑफिस में, एंड व्हेन आई लुक्ड एट यू, आई फॉर अ मोमेंट टोल्ड माई सेल्फ दैट ये जूही है कि कोई और है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. Because you had a different aura. तुम्हारी personality अलग. There was a lot of calmness in your conduct. और मैंने तुमको इतना खुश कभी देखा ही नहीं है. जितना भी देखा, जितना भी मिला हूँ फंक्शंस में, इधर उधर जो भी कुछ है, there was a lot of restlessness in your personality. You know, I might be wrong, but this is what ये मेरी, you're absolutely ये right. मेरी you know, हम लोग लास्ट मिले थे जूही के प्ले में जी. एट रंगशारदा या सेंट एंड्रूज में, शायद सेंट नहीं, वो अपना दूसरा जो थिएटर है अपना पृथ्वी में. नहीं, एट नेशनल कॉलेज के सामने जो थिएटर है बांद्रा में. हाँ, तो उसका कुछ उसका 25वां साल था कुछ था, तो राजी वगैरह सब हम खड़े थे. दैट मीटिंग एंड दिस मीटिंग, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, आई कैन टेल यू, एंड आई रियली वांट टू give credit to you that you have developed so much, and it's really very very nice of you. मैं एक बात बताऊँ, तुम जो बात करी भगवत गीता के बारे में,
Now, sorry, we are shifting our focus to some other area. But क्या करें, शो ऐसे ही होते हैं. ये मैं ऑडियंस आपसे कह रहा हूँ. एंड आई एम श्योर यू विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस. जो जो फेथ टर्म जो है ना, वो फेथ लोगों में रह नहीं गया है, अपने आप पर भी और अदरवाइज ऑल्सो. So I want to, narrate this to you because I also come from a similar spiritual background of my house, in my family. My Guru, Shunuji Maharaj, says a very interesting thing. This is connected to what you said just now. Ki the biggest wealth you have in you is faith. And faith miracle create करता है. और आपको जो मिलता है. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग हमको फेथ नहीं है किसी के ऊपर. सो ही गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल. ही सेज दैट ट्रैवल करते हो और आप ऑनलाइन टिकट ले लेते हो, बॉम्बे दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो, और आप एयरपोर्ट जाते हो, फ्लाइट में बैठ जाते हो. आपको पता नहीं फ्लाइट चलाने वाला कौन है, वो एक्सपीरियंस कितना है उसका. True. आप उसको जानते ही नहीं हो. ही इज अ फेसलेस मैन फॉर यू. और बैठ जाते हो, वो आपको डेस्टिनेशन में लेके जाता है, डेस्टिनेशन में छोड़ देता है जाके. वो इसलिए होता है बिकॉज आपको फेथ है उसके ऊपर. आपको फेथ ही नहीं हो तो क्रैश करेगा ही करेगा वो. Right. So that faith is such a important factor in everybody's life, which we don't, take it seriously. हमको हर बंदे पे शक है. और जो बात आपने बोली उस बात का ही एक्सटेंशन ये है कि जब हम एक अनजान इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं तो ईश्वर पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, जो दुनिया की फ्लाइट चला रहे हैं. Correct. और उस ईश्वर का चेहरा कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है. आप जिस भी शक्ति में विश्वास रखते हैं उसमें रखिए, लेकिन Correct. पॉजिटिविटी में विश्वास रखिए. और Correct. एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, वैसे ही जहाँ फेथ है वहाँ शंका नहीं हो सकती, Correct. डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो शंका हो ही नहीं सकती. Correct. और जैसे ही शंका का 0.1% भी आया मतलब विश्वास नहीं है. विश्वास नहीं. Correct. सो एक मयान में दो तलवार रह ही नहीं सकती, वो वाला केस है. तो मैंने मेरी मयान में से डाउट वाली तलवार निकाल के फेंक दी है. मेरे मयान में एक ही तलवार है, विश्वास, और सिर्फ विश्वास एंड डिटैचमेंट विद द आउटकम. आई डू एवरीथिंग with my 100% dedication, but if the result of whatever I'm doing is not as per what I planned, it's because I had to learn something from it, and something bigger, better is waiting for me. It's going as per his plan, if not as per my plan. So I don't regret any kind of failure in my life anymore. I only look at it as an opportunity to learn from it, to become a better person. And I'm only working on becoming a better person, because that's the only legacy you can leave behind. जूही एक्टर कैसी थी, जूही ये कैसी थी, जूही वो कैसी थी, किसी को याद रहे चाहे ना रहे, जूही इंसान कैसी थी ये याद रहेगा ना. तो मैंने सही कमाई की है अपनी ज़िंदगी में, and I'm only working towards that. Rest everything else is a byproduct, because we're living in a material world. We all have to work, we all have to earn money, we all, दाल चावल खाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो इंसान को पैसे तो कमाने ही है. But that is the material side. The spiritual side, why are we not working on it? Why are we not working on our being, the person that we are from inside? Because that's only what we are going to radiate outside. Let's just take one responsibility of ourselves, and we all will be living in a world that we all are craving for. दुनिया को बदलने चलते हैं हम मोर्चे निकाल निकाल के लोगों को बदलते हैं. मत बदलो, सिर्फ खुद को बदल लो. सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, वो आप खुद. दुनिया अपने आप वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं. उतना तो कर लो, लेकिन हम खुद छोड़ के बाकी सबको बदलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नहीं बदल पा रहे हैं. मेरी ऑडियंस सोच रही है हमने एक्ट्रेस का शो देखने बैठे थे तो. Sorry. but this is a fact. This is me. No, but this is very important. And if you want to become a good performer, if you want to really perform and attract people and convince people, you have to be this. Otherwise, it's not possible. जो मेरी बात बताओ, you told me also, you have started a startup, and it's a very good thing, very big thing, and very important thing in your life. What is this startup of your is all about? क्या है? Please let us know. It's a natural skincare brand called Love Thy Nature. Fantastic. I am the co-founder. This also was a natural progression of something that I firmly believe in, which is nature.
सालों साल से मेरे इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक सीक्रेट्स विद जूही करके आई यूज टू मेक एपिसोड्स वेयर आई यूज टू टॉक अबाउट छोटी छोटी चीज़ें जो अपने किचन में ही मिलती हैं. हल्दी हो गई, फ्लैक्स सीड हो गए, ज़ीरा हो गया, ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स जो अपने किचन में ही हैं बट वो हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, मैं इसके बारे में हमेशा बात बात करती करते थी. फिर मैंने उसको एक स्टेप और आगे किया कि DIY मेरे वीडियोस होते थे जिसमें मैं किचन और अपने घरेलू चीज़ों से ही कैसे आप स्किन का ख्याल रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, मैं वो बनाती थी. जब मैं वो करने लगी तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि व्हाई डोंट यू कम अप विद योर ओन स्किन केयर ब्रांड. एंड धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि एक्चुअली हाउ मच टाइम टुडे पीपल हैव टू सिट एंड डू ऑल दैट आई एम टीचिंग देम. और वो एक बना भी लिया तो कब तक लास्ट करेगा. करेक्ट. तो आई वॉन्ट टू कम अप विद समथिंग दैट आई कैन वाउच फॉर, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या डला है. मैं किसी और की बनाई हुई चीज़ पे तो नहीं गारंटी ले सकती, पर अपनी बनाई हुई चीज़ की तो गारंटी ले सकती हूँ. एंड at the same time the other thought was that since I believe that natural beauty is real beauty, and today कहीं ना कहीं वो भी विलुप्त सी होती जा रही है बिकॉज इतना सोसाइटल प्रेशर है आज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर कि एक एक्ट्रेसेस छोड़ो, नॉर्मल लड़कियां भी दिन रात यही सोचती हैं कि हम कैसे अपनी नोज ठीक कराएं, अपने लिप्स ठीक कराएं, अपना कलर ऐसा चेंज कर लें, हम ये कर. जो आपको दिया गया है आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, क्योंकि एक अननेसेसरी ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसके दायरे में अगर आप नहीं आते तो आप ब्यूटीफुल कंसिडर्ड नहीं हो सकते. ये लगने लगा है लोगों को. सो द थॉट behind this brand was offering natural products which are genuinely gentle, effective, good for your skin. At the same time, through the brand, be the voice to tell people that natural is beautiful. Not just natural products, but you are beautiful naturally. You just need to enhance your beauty by taking care of it. And the way you are, we all are unique. We all have our own unique features and unique beauty. Why so much of pressure of looking in a certain way to be considered beautiful? Aging is beautiful. Correct. Why today you have to always want to look a certain age and do so much on your face? It's a blessing that you are aging and you're it's a blessing ना. मतलब आज Instagram पे लोगों को कुछ भी कमेंट्स करते हैं, अरे ये तो बुढ़ी हो गई है, अरे ये तो ये हो गई है. ये नियामत है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो. क्योंकि जो नहीं हो पाते हैं उनके घर वालों से पूछो, उनको कितना दुख है कि उनका अपना कोई बंदा था जो बहुत जल्दी चला गया. करेक्ट. अगर कोई 40 साल का है तो उससे बोलते हैं 40 साल के हो गए, ये तो बुढ़े हैं. और 40 में वो मर जाते हैं तो कहते हैं कि अरे बहुत जल्दी चला गया, बड़ी जवान था, बड़ी जल्दी चला गया. डिसाइड कर लीजिए आप 40 को बुढ़ा बोलना चाहते हैं कि जवान बोलना चाहते हैं. मतलब मर गया तो अब अच्छा बोल लेंगे, जीते जी उसका जीना मुश्किल कर देंगे कि 40 से मतलब बुढ़ा ही है इंसान. आई मीन व्हाई दिस प्रेशर ऑफ लुक certain way, be hypocrite about it? Why? Just age gracefully, age beautifully, take care of yourself and enhance your beauty as much as you can. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जैसे हैं, आपको ईश्वर ने जो सुंदरता दी है, आप उसका ख्याल रख रहे हैं. आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हम उसको एनहांस कर रहे हैं. आज एक अच्छे से बाल बनाए हैं तो उसको एनहांस कर रहे हैं. पर ये नहीं है कि कुछ और ही करके आ गए हैं. सो दैट इज व्हाट मी एंड माय को-फाउंडर हर्ष खन्ना, वी हैड द सेम थॉट्स. वी बोथ बिलीव्ड in wanting to break the societal pressure of being beautiful only not after you look like a certain way, which is not you. Some people are unrecognizable after a point. I may be hated for saying this because most of the generation is so pro doing all this. हर थोड़े दिन में जाकर, मतलब it's a vicious cycle, it's never ending. आप एक बार उसमें, ये वो मोकेम्बो की डेन है जिसमें घुस गए तो निकल ही नहीं सकते हो आप. तो आप नेचुरल तरीके से एनहांस करो ना अपनी ब्यूटी को. सही बात है. सो इसलिए द होल थॉट बिहाइंड दिस ब्रांड वाज ह्यूमर है यार. दिस ब्लैक ह्यूमर है. सीरियसली, एक बार आप घुस गए इसमें आप नहीं निकल पाएंगे. बट नेचुरली जो भी करेंगे ना, एंड नेचर हैज प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग. We have natural alternatives of every chemical that active बना के जिसको आप आज यूज कर रहे हैं. रेटिनॉल का ऑल्टरनेटिव बकुचियोल है. वो बापची फ्लावर होता है, उससे निकलता है. वो नेचर का ऑल्टरनेटिव है. विटामिन सी का ऑल्टरनेटिव, तो विटामिन सी तो भरा पड़ा है. चाहे वो आप ऑरेंज ले लो, लाइम ले लो, आंवला ले लो, कितनी ही चीज़ों में है. सो ऑल दीज एक्टिव्स विच यू आर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियली इज प्रेजेंट इन नेचर. ईश्वर ने और धरती माँ ने इतना दिया है, उसे क्यों नहीं यूज करना है? क्यों आर्टिफिशियल बनाना है? खुद को भी, चीज़ों को भी. So the whole thought was that, and that led to come up with this startup.
and people are loving it. The ones who have used our products are consumers. We've got fabulous response. It is gentle on your skin. You feel good about using it. It is calming. Our products are calming. Okay. So it overall it works on your well-being also, because the fragrance is not artificial, they are all natural, and natural जो ingredients है उसकी fragrance जो है वो इतनी calming and soothing है. Aromatherapy is that only, that it calms your mind. So वो सब the thought was this, जिसका culmination is the brand that So we they are have in the started. form of what? So it's we have started with face products. So we have cleanser, face oil, toner, exfoliator, and a serum. As of now, we have 5 products. Okay, fantastic. यार मतलब it's a shifting of from one area which is nothing to do with this kind of minds. And I'm going to shift more. I'll keep shifting because I don't want to stop here. God has given us one life. We can do so much in this one life. Why bind ourselves with doing just one thing? I'm an actor. I'm this also. I'm a mother. I'm this. And I will probably next time when we sit and talk, you will say, Juhi, ये तो मैं सोच ही नहीं था, तुमने ये भी करा है, तुम ये कब से सोच रही थी करने की? Because I don't want to stop my growth. I want to keep learning. And as I learn, I want to keep exploring. And that's only to make myself feel that okay, I'm not wasting myself by just sitting at one place. Stagnant nahi hu main. I want to grow as a person, and as I grow, I want to keep doing newer things. It has got nothing to do with only a way which is going to give money, but my personal growth. It's so important. So yes, I want to keep growing, and I'm loving it. So that's all that my brand stands for. That natural is beautiful, and natural products are beautiful, and love your nature, and that is why the brand name is Love Thy Nature. You have connected the product with your products with your nature. I think nature is what is important, Juhi. और unfortunately हमारे देश में इतनी बेकदरी कर रहे हैं हम लोग नेचर की, कुदरत की, कि कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है जी. और बिना चार्ज किए हुए, बिना पैसे लिए हुए, बिना दिस थिंग वो आपका ख्याल रखती है. किसी ने बहुत सही कहा कि हवा मिलती है हमको फ्री, ऑक्सीजन हमको मिलता है फ्री, सबको फ्री है, कोई पैसे लेता नहीं है, और उसकी वैल्यू आप नहीं करते हैं. लेकिन जिस दिन आप वेंटिलेटर पे जाते हो ना और लाखों रुपया खर्च करते हो, आपको ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती है. इट्स सच अ सैड थिंग, यू नो. वी कट ट्रीज, हम लेक्स की जो है ख्याल नहीं करते हैं, हम पक्षियों का ख्याल नहीं करते हैं, हम लोग फूल पत्तियों का ख्याल नहीं करते हैं. हमने कितना अब्यूज़ किया. और ऐसा नहीं कि नेचर ने आपको उसका बदला नहीं चुकाया. वी हैव सीन फ्लड्स, वी हैव सीन नेचर एट इट्स वर्स्ट as a punishment to us, because we are not taking care of the nature. But anyway, human beings जो है वो उनको जो चीज़ आराम से मिलती है उसकी कदर नहीं होती. इसीलिए जो आप कह रहे हैं ना, हमारे ब्रांड का जो फिलॉसफी है वो एक और है, जो हम कहते हैं सेल्फ लव रीडिफाइंड. हम उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो उससे पहले नेचर से प्यार कीजिए, क्योंकि अगर आप नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं अल्टीमेटली. जैसे आपने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया. इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी माइंडफुल, इफ यू आर गोइंग टू कीप कटिंग ट्रीज, you are going to have lack of oxygen. So if you feel that you're doing it for yourself because you are going to cut it and create a maybe a concrete jungle बना के और एक building खड़ी कर दी, so you think that you're doing it out of self love? No. True self love is when you love nature, because that's your home. So self love is redefined when and that's why we say that if you love yourself, love thy nature. You have a lot of affinity towards books. आप पढ़ती बहुत हो. Reading is your fantastic hobby. I think my 4th best friend is books. Books. तो मैंने सुना तो एक साथ 5-5 6-6 किताबें लेके पढ़ती है तू. हाँ, मैं ऐसा रिसेंटली तक करती थी, लेकिन अब मैंने अपने आप में बदला लाया है. 5 किताबें कैसे पढ़ सकता है एक साथ? मैं पता नहीं, ये बहुत ही अजीब मेरी आदत थी. जैसे आई यूज्ड टू गेट वेरी अट्रैक्टेड सीइंग बुक्स. मुझे पता नहीं, अलग ही किस्म का अट्रैक्शन होता है. एंड वो ही अच्छी आदत मेरी बेटी में भी आई है. वो शी इज एन एविड रीडर, मतलब बहुत पढ़ती है वो. उसकी अच्छी आदत है कि वो जो किताब शुरू करती है वो ख़त्म करती है. लेकिन मैं एक बुक खोलती थी, फिर
उसको आधे में छोड़ देती क्योंकि जो रेस्टलेसनेस की आपने बात की ना, yeah. तो मुझे ऐसा लगता था कि फोमो कि उस बुक में क्या है क्या वो भी देख लूँ थोड़ा, तो वो भी खोल लेती थी। करेक्ट फिर करेक्ट वो भी रखी है, तो क्योंकि कई बार 4-4 बुक एक साथ ले आऊँगी, 5-5 ले आऊँगी, yeah. रोक नहीं पाती थी खुद को। तो एक साथ 4-5 बुक पढ़ रही होती थी मैं। हम्म। फिर अब आज मेरा मूड ये वाली बुक पढ़ने का है, मतलब आगे कंटिन्यू करने का है, तो मैं उसको कंटिन्यू करती Yeah. थी। एंड आई यूज्ड टू फील दिस इज़ अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ मी। Until recently, where I saw somewhere a video where someone very knowledgeable was saying कि हम लोग चीज़ों को आधा छोड़ देते हैं, काम को आधा छोड़ देते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी इन अस। Yeah. से इन बाय फॉर एग्जांपल आप में से कई लोग होंगे जो शायद किताबें आधी पढ़ के छोड़ देते होंगे और अगली पे मूव ऑन कर जाते होंगे। So like, ये तो मैं हूँ, Yeah. this is me and I'm not doing good. So that person said that, the first promise you make to yourself that जो काम मैं शुरू करूँगा या करूँगी उसे मैं पूरा करूँगा, फिर वो चाहे किताब पढ़ना ही क्यों ना हो। I said I will change that about myself. Since then I have finished 2 full books and I'm on the 3rd one now. तो मैं पढ़ तो अब तीसरी बुक रही हूँ उसी टाइम में, लेकिन इस बार पूरी कंप्लीट करके और फिर तीसरी पे आई हूँ। तो या ये बदलाव भी Fantastic. मुझ में आया। तो ये वो रेस्टलेसनेस टू काम में आधी किताबें छोड़ के पढ़ने की बजाय एक पूरी किताब पढ़ के ख़त्म करो शांति से, फिर अगले पे मूव ऑन करो, ऐसा है। Fantastic. Thank you, Joey, for a fantastic chat. मुझे लगता है कि ये जो knowledge तुम्हारा on spiritualism, on your startups, on your industry, reactions, the way you performed, you stood up as a brilliant actress, and people still are you have a tremendous fan following. We can see that on your Instagram and everything, the way people react to your reels. People identify with you at present also, and they used to identify a reel also. You're a blessed child, and we, on behalf of the entire team, wish you all the best. Thank you. For more and more success. Your product does very well and goes more closer to nature day by day. Thank you. And your daughter becomes another achiever. Thank you. Let the entire world look up to her as one of the finest persons, human beings. Thank you so much. And we all really adore your work and your personality as a whole. Thank you. Thank you. आपने जो कुछ भी कहा उस सब के लिए thank you so much. It was my pleasure that I got a chance to sit with you and talk about everything that I love talking about. It was absolutely wonderful being here. Thank you for calling me. Thank you, Joey. Thank you. जोई, मैं एक अपना शो का एंड जो है ना बहुत म्यूजिकली एंड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तेरा एक हिडन टैलेंट है सिंगिंग का। यू आर अ गुड सिंगर। वो आप डिसाइड कीजिएगा सुनने के बाद। नहीं मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना हुआ एक जगह। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू एंड द शो विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सो दैट वी कैन एंड द शो ऑन अ म्यूजिकल नोट। ओके, मैं कोई ऐसा ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, तो जैसे भी गाऊँ माफ़ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। ओके, okay, this is one of my very favorite songs, so I'll sing this. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। क्या बात। Thank you. Thank you.